Hello students, today we are going to start with trigonometry and the first result in this is De Morvis theorem. What is De Morvis theorem? De Morvis theorem states that if n is any positive integer or negative integer, अगर n basically positive negative की बात ही नहीं है, if n is any integer whether it is positive, 0 or negative integer, then cos of theta plus iota sin theta raised to power n is always equals to cos n theta plus iota sin n theta. Means जो ये power है n, this will be multiplied with this angle theta. ठीक है, और क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जो cos और sin के बीच में एंगल है, this angle is same here. दोनों एंगल्स क्या हैं, सेम. देन अगर n कोई भी इंटीजर है, whether it is positive, negative or 0, then cos theta plus iota sin theta raised to power n is always equals to cos n theta plus iota sin n theta. Now अगर इंटीजर की बजाय n कोई फ्रैक्शन है, again that fraction may be positive or negative, means any rational number. In that case also this cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n की एक वैल्यू क्या होगी, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. जब n कोई रैशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, इट मीन्स इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू. अगर ये p बाई क्यू फॉर्म में है, देन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n की कितनी वैल्यूज आएंगी, जितना इसका डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, तो इसकी q वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, तो उन q वैल्यूज में से एक वैल्यू जो है वो क्या होएगी, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. फाइन. सो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है. सो वी प्रूव दिस वन बाय वन. फर्स्ट वी प्रूव दिस रिजल्ट फॉर इंटीजर्स. नाउ इफ n इज 0, हमने कहा ये रिजल्ट होल्ड करता है हर इंटीजर के लिए. यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है, बट इट होल्ड्स फॉर ऑल इंटीजर्स. तो if n is equals to 0, then we can find out the value of cos theta plus iota sin theta raised to power 0. As we know, anything raised to power 0 is always 1. ठीक है, and what is the value of cos of n theta plus iota sin n theta when n is equals to 0? It is nothing but cos of 0 theta, it means cos of 0 plus iota sin of 0. Sin 0 पे 0 and cos 0 पे 1. So this value is again equal to 1. It means cos theta plus iota sin theta raised to power n is equals to cos n theta plus iota sin n theta for n equal to 0. ठीक है, अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो, if n is a positive integer. So we are taking different cases. First case is when n is equals to 0, and now we are taking the case when n is a positive integer. N is greater than 0 and it is a positive integer. We are taking integers only. Fine. And if n is a positive integer, then in that case we prove this result by induction. So पॉजिटिव इंटीजर है, इट मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगी, 1. सो लेट्स चेक. मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं हम, कि मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करते हैं रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं. सो वी चेक दिस रिजल्ट फॉर n इक्वल टू 1. फॉर n इक्वल टू 1 दिस वैल्यू इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो पावर 1 हो गई. ठीक है. नाउ what about the value of cos n theta plus iota sin n theta when n is equals to 1? If I substitute equal to n equal to 1 here, what I will get? It is 1 theta plus iota sin of 1 theta. So it is nothing but cos theta plus iota sin theta. ठीक है. So it means these two values are same for n equal to 1. ठीक है. सो इंडक्शन में n इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है. नाउ इन इंडक्शन वी सपोज दैट
result is true for n equal to m. हम मान लेते हैं रिजल्ट n इक्वल टू m के लिए सपोज होल्ड करता है. अगर n इक्वल टू m के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, इट मीन्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m इज ऑलवेज इक्वल टू cos m थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ m थीटा. अब मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. सो वी हैव टू प्रूव रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इक्वल टू m प्लस 1. ठीक है, अगर हमें इसके लिए प्रूव करना है तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m प्लस 1 is equal to cos of m plus 1 theta plus iota times sine of m plus 1 theta. This you have to prove. So we take the left hand side. Cos of theta plus iota sine theta raised to power m plus 1. We know that it is equals to cos theta plus iota sine theta raised to power m into cos of theta plus iota sine of थीटा. वी कैन राइट इट लाइक दिस. m प्लस 1 पावर है तो हम इसको पावर m और 1 में अलग अलग कर सकते हैं. नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस फ्रॉम योर लास्ट पार्ट, है ना. इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे. सो वी गेट दिस इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. फाइन. नाउ इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, व्हाट आई विल गेट? If I multiply these two, I'll get cos m theta into cos theta plus iota times cos m theta into sin theta plus iota times sin m theta into cos theta plus iota into iota is iota square which is minus 1 into sin m theta into sin theta. अब वो टर्म्स जिनमें आयोटा नहीं है उनको अलग कर लो और जिनमें आयोटा है उन टर्म्स को अलग कर लो. सो वी गेट दीज टू टर्म्स हियर, ये वाली टर्म और माइनस ऑफ दिस टर्म. सो वी राइट इट डाउन हियर. प्लस आयोटा वाली टर्म्स कौन सी हैं? दैट इज कॉस एम थीटा साइन थीटा प्लस साइन एम थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस? इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी which is nothing but equal to cos of a plus b. ठीक है. and iota times this is what? sin a cos b plus cos a sin b, cos a sin b. so it is nothing but sin of a plus b. so what is this? it is nothing but cos of m plus 1 times theta plus iota times sin of m plus 1 times theta. and आपको यही प्रूफ करना था, है ना. So it means result holds for n equal to m plus 1 also. It means by induction hypothesis, it has been proved that it has been proved that cos theta plus iota sin theta raised to power a positive integer is always equals to cos n theta plus iota sin n theta. ठीक है. अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी प्रूफ कर दिया इस रिजल्ट को और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 के लिए भी प्रूफ कर दिया. नाउ द थर्ड पार्ट वी विल प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n लेस देन 0. अगर n नेगेटिव इंटीजर हो. If n is a negative integer, we can write it as minus of k where k is a positive number. अगर हम पॉजिटिव नंबर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव. n नेगेटिव है, इसका मतलब we can write it as minus of k where k is a positive integer. ठीक है. Now we have to prove that cos theta plus iota sin theta raised to power minus k is equal to cos of minus k theta प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस ऑफ के थीटा. ठीक है. ये हमें प्रूफ करना है. सो वी टेक दिस वैल्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर
माइनस के। अगर पावर नेगेटिव होती है तो हम उस नंबर को कैसे लिखते हैं, 1 बाय दैट नंबर, है ना। तो इट इज रेज टू पावर k। नाउ k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डी मॉर्विस थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा। मतलब ये जो k है वो अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन कॉस के थीटा प्लस आयोटा साइन के थीटा। अगर मैं इस टर्म को डिनोमिनेटर में जो टर्म है उनके बीच का साइन चेंज करूं और उस टर्म से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, एंड इट इज़ नथिंग बट कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। जो हमारे पास टर्म थी डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट है, उसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सो व्हाट वी गेट, इट इज़ कॉस के थीटा माइनस आयोटा साइन के थीटा डिवाइड बाय, दिस इज व्हाट नाउ, इट इज़ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दो सेम टर्म्स का सम और दो सेम टर्म्स का डिफरेंस। तो इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या हुई, कॉस स्क्वायर के थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के थीटा। नाउ आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। सो व्हाट वी गेट इन द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या बना, कॉस स्क्वायर के थीटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस साइन स्क्वायर के थीटा। फाइन, सो नाउ व्हाट इज दिस, कॉस स्क्वायर ऑफ दिस एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल। अगर ये एंगल सेम हो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, 1। नाउ व्हाट इज द न्यूमरेटर, as we all know cos is an even function, तो cos of minus k theta is nothing but cos of k theta, and sin is an odd function, तो sin of minus k theta is nothing but minus sin k theta. ठीक है, so using these two results what we get here, we can write this as cos of minus k theta, and this is minus sin k theta, that can be written as आयोटा एज इट इज साइन ऑफ माइनस के थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करती हूँ, इसकी वैल्यूज पुट करूँ तो यही आएगा हमारे पास। फाइन, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ कॉस ऑफ माइनस के इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस के इंटू थीटा, और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो। यू हैव टू प्रूव दिस ओनली, हमें यही प्रूव करना था कि ये वैल्यू इसके क्या होगी, इक्वल। इट मीन्स रिजल्ट होल्ड्स फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। अगर हम इंटीजर्स को नेगेटिव लेते हैं तब भी ये रिजल्ट होल्ड करता है। इट मीन्स ये रिजल्ट हर इंटीजर के लिए, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, सबके लिए होल्ड करता है। नाउ वी हैव टू प्रूव द सेकेंड पार्ट। पहले तो सेकेंड पार्ट है क्या था, इफ n इज एनी फ्रैक्शन देन cos of n theta plus iota sin n theta is one of the values, it is not equal to, it is one of the values of cos theta plus iota sin theta raised to power n। इसकी n वैल्यू, जितनी भी इसकी वैल्यूज होंगी, n जरूरी नहीं है, उसकी जितनी वैल्यूज होंगी उनमें से एक वैल्यू ये होगी। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव इट, now let n be a fraction, so we suppose n is equals to p by q where q is not equal to 0। ठीक है, और p जो है that can be a positive integer, that can be a negative integer और it can be a 0 also। फाइन, क्योंकि हमने कहा कि फ्रैक्शन है तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड द सेकेंड कंडीशन इट मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर, तभी हमारा ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करेगा p के ऊपर। ठीक है, और p जो है दैट कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ थीटा बाय q प्लस आयोटा साइन थीटा बाय q रेज टू पावर q। अब q क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास ये एंगल सेम हो cos और साइन के अंदर, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म cos of the angle plus iota sin of the angle, then इसकी पावर, होल की पावर अगर कोई इंटीजर हो तो
तो बाय द प्रीवियस रिजल्ट विच वी हैव प्रूव्ड अबव, ये एंगल के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. सो दिस Q विल बी मल्टीप्लाई विद दिस एंगल. फाइन. और Q इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू cos of theta plus iota sin theta. So it means this value is equal to this. ठीक है. Now if I take qth root on both the sides, अगर मैं दोनों तरफ qth रूट ले लूँ, qth रूट ये सब स्क्वायर रूट लेते हो 1/2 पावर कर देते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 पावर कर देते हैं. बट नाउ आई एम टेकिंग qth रूट, यानी कि इसकी फर्दर पावर कितनी कर रहे हैं हम, 1/q. सो इट इज इक्वल टू cos of theta प्लस iota sin theta रेज टू पावर 1/q. अब आप कहोगे कि ये इसके इक्वल है. येस इट इज इक्वल, बट हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जब आप क्यूब रूट निकालते हो तो आपके पास तीन वैल्यूज आती हैं. इसलिए आप क्यूबथ रूट निकाल रहे हो तो इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, क्यू वैल्यूज आएंगी. अब ये इसके इक्वल है, इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द क्यू वैल्यूज ऑफ दिस नंबर. इसकी जो Q वैल्यूज आई हैं उनमें से एक वैल्यू ये वैल्यू होगी, और ये क्या है, दिस Q विल बी कैंसल आउट विद दिस. सो इट इज नथिंग बट cos of theta by Q प्लस iota sin of theta by Q. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द Q वैल्यूज ऑफ cos theta प्लस iota sin theta रेज टू पावर 1/q. फाइन. अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n चाहिए था, वेयर n इज p/q. बट अभी क्या आया हमारे पास, रेज टू पावर 1/q. तो p/q करने के लिए क्या करें हम, इसकी pth पावर कर देते हैं. सो इट मीन्स pth पावर ऑफ दिस, pth पावर ऑफ दिस इज one of the Q values of pth power of this. ठीक है. तो रेज टू पावर p हम दोनों की कर देते हैं. ठीक है. तो इसका मतलब इसकी जो एक वैल्यू, ये जो वैल्यू आई, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ Q वैल्यूज ऑफ दिस नंबर. ठीक है. अब p/q क्या है, इट इज नथिंग बट n. इट मीन्स दिस इज व्हाट, cos of theta plus iota sin theta raised to power n, and this is one of the Q values of this. Now what is this, p is an integer. और हमने पिछले रिजल्ट में क्या किया था, अगर इस तरह के नंबर की कोई पावर इंटीजर है तो वो साइन और कॉस में जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है. इसका मतलब इट इज p थीटा बाय q प्लस आयोटा साइन p थीटा बाय q इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ q वैल्यूज ऑफ दिस. फाइन. नाउ p/q को रिप्लेस कर दो किससे, n से, क्योंकि p/q क्या है, n. So this is one of the Q values of cos theta plus iota sin theta raised to power n, and this you have to prove. Fine. Now there are few things which you have to remember. Like first thing which we can derive from here, that is what is the value of cos theta minus iota sin theta raised to power n, where n is any integer or a fraction. Now what is this, it is cos of theta can be written as cos of minus theta, and we can write sin of minus theta as minus sin theta. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, cos of minus theta मेरा cos theta के इक्वल होता है और sin of minus theta मेरा minus sin theta के इक्वल होता है. So I can write this term as cos of minus theta plus iota sin of minus theta raised to power n.
अब डी मॉर्विस थ्योरम कब अप्लाई होती है? जब आपकी जो कॉस और साइन वाली टर्म है, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में हो और उसकी पावर कोई इंटीजर हो या कोई फ्रैक्शन हो। क्या ध्यान रखना है, डी मॉर्विस थ्योरम कब अप्लाई होगी? जब कॉस और साइन दोनों के बीच का एंगल सेम हो और ये टर्म क्या हो? सिस। सिस का मतलब C स्टैंड्स फॉर कॉस, देन प्लस एंगल एक थीटा है, I मतलब आयोटा, साइन ऑफ सेम एंगल। फाइन, सो वी कैन राइट दिस टर्म एज सिस ऑफ थीटा। हम इसको सिस ऑफ थीटा भी लिखते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? सिस ऑफ थीटा। सिस मीन्स C प्लस आयोटा साइन, कॉस प्लस आयोटा साइन, ठीक है। और थीटा का मतलब एंगल जो इन दोनों के बीच में आएगा वो सेम, दैट इज थीटा। फाइन, सो अगर इस टाइप की फॉर्मेशन है तभी आप डी मॉर्विस थ्योरम लगा सकते हो। ये जो n पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई तभी होगी। फाइन, सो नाउ here it is of the form cis and angle is minus theta, इसी फॉर्मेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इस एंगल, इस पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट cos ऑफ माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस एन थीटा। सो इफ आई फर्दर एक्सपांड इट, cos क्या होता है? हमेशा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब cos of minus theta is always equals to cos theta. cos negative angle अगर है तो वैल्यू क्या आएगी? cos of theta. So it means here it is cos of n theta. And sin is an odd function, इसलिए sin of minus n theta क्या आएगा? minus of sin n theta. Fine. So it means this value is equal to this. ठीक है, तो ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि अगर साइन बीच में पॉजिटिव हो तब तो हम सीधा ही एंगल मल्टीप्लाई, ये पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब पहले हम इस फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, फिर ये वैल्यू आती है। सो अगर पावर बीच में साइन नेगेटिव भी है तब भी ये n एंगल के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, व्हाट अबाउट 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा? अगर डिनोमिनेटर में टर्म हो तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? वी विल टेक इट इन द न्यूमरेटर। कैसे लेके आओगे? आइदर यू कैन राइट इट एज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर -1। अब ये सिस फॉर्म में ही है और एंगल भी सेम है, इसका मतलब वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस पावर विद द एंगल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? cos of minus theta is cos theta and sin of minus theta is minus sin theta. So 1 by this value is equals to, this is cis of minus theta. हम इसको डायरेक्टली और क्या लिख सकते हैं? cis of minus theta. cis में ध्यान रखना है कि बीच में प्लस साइन ही आएगा। जब cis फॉर्मेशन में लिखोगे तो इट इज नथिंग बट cos प्लस आयोटा साइन, और फिर यहाँ जो एंगल है वो इन दोनों जगह पे सेम। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप यहाँ गलती करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। फाइन, सो नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देयर, इफ यू हैव साइन थीटा, कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, सपोज साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है और इसकी पावर n है, तब ये n अंदर एज इट इज मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट सिस, इट इज साइन प्लस आयोटा कॉस। हियर आयोटा इज मल्टीप्लाई विद कॉस नॉट विद साइन, तो पहले आपको उस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करूं? आई कैन राइट साइन थीटा एज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकती हूँ, प्लस आयोटा कॉस को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम कन्वर्जन करें तो ये एंगल सेम होना चाहिए तभी ये सिस में कन्वर्ट होगा। अब अगर सपोज आप कहोगे मैम ऐसे कैसे लिखा है इस चीज को, है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट और कॉस साइन में और साइन कॉस में कन्वर्ट होता है अगर हम पाई बाय 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो वो क्या आएगा? इस क्वाड्रेंट में चला गया, ये साइन में तो कन्वर्ट होगा बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा आएगा, बट मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्लस। तो मैंने क्या लिया? पाई बाय 2 माइनस थीटा।
ऐसे ही कॉस थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो अगेन साइन पॉजिटिव ही चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए मैंने क्या लिया, π/2 माइनस थीटा। फाइन, so you can check this sine of π/2 minus theta is also equal to cos theta. So I can write this type of term in this way, and then you can multiply this n inside, otherwise नहीं multiply कर सकते। तो ये क्या बन जाएगा, n π/2 minus n theta plus iota times sine of n π/2 minus n theta। so ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हैं। एक और चीज़ जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, हम सिस तो देख लेते हैं किस फॉर्मेशन में, लाइक कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कॉस ऑफ एल्फा थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा थीटा। नाउ हियर एंगल इज नॉट सेम, अगर इसकी पावर n है तो ये n अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है, क्योंकि हमें एंगल क्या चाहिए, सेम, ये n अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये एंगल जो साइन और कॉस के बीच में है ये क्या होना चाहिए, सेम, और पहले आयोटा जो है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए और कॉस वाली टर्म विदाउट आयोटा होनी चाहिए। अगर इस टाइप से है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म, बट यहाँ आप एंगल्स इक्वल कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसलिए ये कभी भी इस टर्म के इक्वल नहीं होगा। तो डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइन, so this is all about today's lecture. Thank you very much.